नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशन जबीन। आप देख रहे हैं दक्षिण भारत न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली धमाके के मुलजिमान को हरगिज नहीं बख्शा जाएगा, वजीर आजम मोदी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान। आंध्र प्रदेश में 50 नए MSME पार्क्स का आगाज। श्रीकाकुलम से सीएम नायडू ने वर्चुअल तौर से 17 अजला में की शुरुआत। आंध्र प्रदेश में SIR के निफाज की मुखालिफत। CPIM ने सदाए एहतजाज बुलंद करने की कही बात। मौलाना अबुल कलाम आजाद का आज 137वां यौम पैदाइश। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने पेश किया खिरात। अब खबरें तफसील से। दिल्ली के लाल किले के करीब कल शाम हुए खौफनाक धमाके की पूरी मुल्क में मजम्मत की जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस सानहे पर गहरे रंज और गम का इजहार किया और कहा कि मुल्क की मुख्तलिफ तहकीकाती एजेंसियां वाक़े की मुकम्मल जांच कर रही हैं। दूसरी जानिब वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि लाल किला धमाके के जिम्मेदारों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. I extend my heartfelt condolences to all those who lost their lives in the tragic incident that occurred in Delhi yesterday. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that दिल्ली धमाके के मुल्क भर से सियासी रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर दुर्गेश ने इस वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया और कहा कि मरकजी वजीर दाखिला ने सूरत हाल पर काबू पाया और अवाम को हौसला दिया। दूसरी जानिब कर्नाटक के वजीर प्रियंक खड़गे ने सख्त तनकीद करते हुए कहा कि अमित शाह आज़ाद भारत के सबसे नाकाम वजीर दाखिला हैं और इनसे जवाब मांगा जाना चाहिए। Or in any other situation in our country, the Home Minister would have resigned. Probably Mr. Amit Shah is the most incompetent Home Minister in independent India. Manipur happened, Delhi riots 2020 happened, Pahalgam happened, Pulwama happened. The country is in utter chaos. The Home Minister goes to Bihar and other places and openly says that Bangladeshis are coming in. Openly says terrorism is on the rise. Then what is he doing? In any other state, he would have been thrown out of the cabinet, in any other country. But he is indispensable because he shares all the secrets of Mr. Modi.
I mean, why is he not being held accountable? Why is the Home Minister of India not being held accountable? Is he there only to dislodge state governments? Is he there only to do politics? If he is going to do only that, let him get back to his party fold. What is the point of being the Home Minister of India and at what cost? How many more lives should be lost to his incompetence? It's very unfortunate that and it is under control now, it seems, and government will take strenuous action on this one. And immediately our Central Home Minister Amit Shah has gone into the scene, and he has given so much of courage to the people of Delhi. And in any way, this is very unfortunate, and this act is not correct. And we appeal the people that should maintain calmness at this moment, and government will take all activities which are to get the situation normal. And Amit Shah ji has taken very good step to give courage to the people of the. आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने आज प्रकाशम जिले में एक MSME पार्क का इफ्तिताह किया और इसी दौरान रियासत भर में 17 अजला में 50 नए MSME पार्क्स का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह और संगे बुनियाद भी रखा। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा, हुकूमत ने वन फैमिली वन इंटरप्रेन्योर स्कीम के तहत 87 मुकामात पर मंसूबे शुरू किए हैं। हर हुकूमत रोज़गार का वादा करती है, मगर मैं सिर्फ मुलाजिमतें नहीं बल्कि कारोबार के मौके देने का वादा करता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने 587 एकड़ अराजी पर कायम होने वाले 35 सरकारी और खानगी MSME पार्क्स का संगे बुनियाद रखा। आंध्र प्रदेश के अनामया जिले के शेब्याला गांव में आज MSME पार्क के संगे बुनियाद की तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर रियासत के वजीर ट्रांसपोर्ट मंडीपल्ली रामप्रसाद रेड्डी ने जिला कलेक्टर निशांत कुमार और आला ओहदेदारों के साथ शिरकत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करना और मुकामी सतह पर सनअती तरक्की को फ़रोग़ देना है। इस मौके पर APIIC चेयरमैन नागेश्वर नायडू व डायरेक्टर कंडा भास्कर रेड्डी, फॉरेस्ट डायरेक्टर रेड्डी यादव और दीगर मुकामी कायदीन मौजूद थे। ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి దూరదృష్టితో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఈరోజు APIIC తరఫున MSME కింద కొత్తగా పారిశ్రామిక వాడలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। దాని శంకుస్థాపన కార్యక్రమం ఈరోజు రాయచోట్లో కూడా సిబ్బ్యాల్లో జరుపుకోవడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఒక కుటుంబం ఒక పారిశ్రామికవేత్త అనే నినాదంతో కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చే సమయానికి ఎక్కడ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరుద్యోగం అనేది ఉండకుండా మన బిడ్డలకు వారి యొక్క భవిష్యత్తుకు ఒక భరోసానిచ్చే విధంగా మనమే మన నియోజకవర్గాల్లో కూడా పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసుకునే విధంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపకల్పన చేయడం జరిగింది। దానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రారంభించడం, మనం కూడా మన నియోజకవర్గంలో ఏర్పాటు చేసుకోవడం ఇది మన పూర్వజన్మ సుకృతం। దీనివల్ల మన ప్రాంతంలో ఉన్న మన బిడ్డలకు రేపు రాబోయే కాలంలో వాళ్ళు आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने आज पंगानूर मंडल के चदल्ला गांव में वर्चुअल अंदाज में एक नई इंडस्ट्री का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब में पंगानूर TDP इंचार्ज C रामचंद्र रेड्डी, पाला मुनीर RDO भवानी और कई मुकामी कायदीन और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। वजीर आला ने अपने वर्चुअल खिताब में कहा कि ये नई सनत मुकामी नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करेगी और इलाके की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। तकरीब के दौरान शुरका ने सनत के क़याम पर खुशी का इजहार किया और हुकूमत की सनअती पॉलिसियों को सराहा।
विजयवाड़ा से बड़ी खबर है। सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी वी श्रीनिवास राव ने आंध्र प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के निफाज की सख्त मुखालिफत की है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आंध्र प्रदेश में एसआईआर के निफाज की भरपूर मुखालिफत कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने इस अमल के लिए 12 रियासतों की फहरिस्त जारी की थी, जिनमें आंध्र प्रदेश शामिल नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वजीर आला चंद्रबाबू नायडू, जो पहले एसआईआर के खिलाफ थे, अब इस पर खामोश है और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी भी इसकी मुखालिफत नहीं कर रही। वी श्रीनिवास राव ने मजीद कहा कि 16 नवंबर को एसआईआर के खिलाफ तमाम पार्टियों की मीटिंग बुलाई जा रही है। Sir is against the constitutional law, is already disputed in Bihar, and Supreme Court is intervened, and now the case is also going on for against the implementation of the remaining 12 states. But Andhra Pradesh is not a part of that second phase 12 states. It's not listed. No public notification is issued. No all-party meeting has been conducted. Without meeting all these requirements, suddenly state election officers started to implementation of this SAR in our state is completely against the law. People's Representation Act is given some rules. According to those rules, this is not viable, is not valid. So immediately that should be stopped. For that, CPIM is going to organize one roundtable meeting on the coming 16th with all parties who are interested in this issue. And we are demanding the state government to intervene and stop it, because Telugu Desam earlier at the time of election commission meeting on this, they told their opinion to link the citizenship issue with the voting. आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को खिराज पेश किया। चंद्रबाबू नायडू ने भारत रत्न मौलाना आज़ाद को आज उनके यौम पैदाइश पर याद किया। इस मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश ने कहा कि मुल्क को आज़ादी दिलाने में मौलाना आज़ाद के रूल को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। चंद्रबाबू नायडू ने मजीद कहा कि मौलाना आज़ाद ने हिंदुस्तान को तालीम याफ्ता मुल्क बनाने का ख्वाब देखा और इसको पूरा करने के लिए सख्त जद्दोजहद की। ताड़ेपल्ली में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद एक अजीम मुजाहिद आज़ादी और हिंदुस्तान जदीद तालीमी निज़ाम लाने वाले पहले शख्स थे, जिनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। जगनमोहन रेड्डी ने कौमी यौम तालीम और अक़लीती फलाह व बहबूद के हवाले से अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर वाईएसआर सीपी अक़लीती सेल के सदर कादर बादशाह, MA हफीज़ खान, MLC रूल्ला के अलावा पार्टी के कई रहनुमा मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले में आज भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौके पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के ज़िलाई सदर और साबिक़ MLA आनंद वेंकट राम रेड्डी ने मौलाना आज़ाद के फ़ोटो पर फूलों की माला चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद न सिर्फ भारत के पहले वज़ीर तालीम थे, बल्कि एक अजीम मुजाहिद आज़ादी और इल्म व तालीम के फ़रोग़ के अलमबरदार भी थे। అబుల్ కలాం ఆజాద్ గారి యొక్క జన్మదినాన్ని ఎంతో ఘనంగా కూడా జరుపుకుంటున్నారు. అదే కాకుండా ఆ రోజు స్వాతంత్ర సమరంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున కూడా పాల్గొన్నాడు. జైలు జీవితానికి దేశ స్వాతంత్రం కోసం అనేకంగా క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం కావచ్చు, సహకార ఉద్యమం కానీ, అనేక రకాల నిరాకరణ ఉద్యమం కానీ, ఇవన్నీ దాంట్లో కూడా పాల్గొనే కాకుండా జైలు జీవితాన్ని కూడా చేశాడు. స్వాతంత్రానంతరం మొట్టమొదటిగా ప్రధానమంత్రిగా జవహర్లాల్ నెహ్రూ వచ్చిన తర్వాత ఆయన క్యాబినెట్లో తొలి విద్యాశాఖ మంత్రిగా కూడా దాదాపుగా 11 సంవత్సరాలు కూడా పనిచేశాడు. అనేకమైన కూడా విద్య అనేది కూడా అందరికీ చేరువు కావాలని చెప్పేసి, ముఖ్యంగా కులాలకు అతీతంగా, మతాలకు అతీతంగా, వర్గాలకు అతీతంగా కూడా పేదవారికి కూడా అందరికీ కూడా సమానంగా అందాలని చెప్పేసి అనేక రకంగా కూడా చట్టాలు కూడా తీసుకొని రావడం కూడా జరిగింది. ఆయన విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడే యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ కూడా ప్రత్యేకంగా పెట్టి ఈ రోజు కూడా విద్య, ముఖ్యంగా ఉన్నత విద్య కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేరువైందంటే
యూనివర్సిటీ గ్రాంట్ కమిషన్ యొక్క చొరవ కావచ్చు, లేకపోతే వారు తీసుకున్న నిర్ణయాలు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా తీసుకొని రావడం జరిగింది. దేశమంతా కూడా విశ్వవిద్యాలయాలను కూడా స్థాపించడం కూడా జరిగింది. పార్టీ ఆఫీసులో ఈరోజు మౌలానా అబ్దుల్ కలాం గారి జయంతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. గొప్ప స్వాతంత్ర సమరయోధుడు మౌలానా సాహితీవేత్త తత్వవేత్త। रियासत कर्नाटक दिगर इलाकों की तरह रायचूर जिले में भी निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ हज़रत टीपू सुल्तान शहीद का यौम पैदाइश मनाया गया। रायचूर डिस्ट्रिक्ट टीपू सुल्तान संघ के ज़ेर एहतमाम शहर के टीपू सुल्तान सर्कल पर टीपू सुल्तान की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत पेश किए गए। प्रोग्राम की सदारत कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद शाह आलम ने की। इस मौके पर मारूफ कांग्रेस लीडर साजिद समीर ने मुल्क के लिए हज़रत टीपू सुल्तान की खिदमात को याद किया। साजिद समीर ने टीपू सुल्तान सर्कल पर टीपू सुल्तान का मुजस्सिमा नस्ब कराने यकीन दिलाया। ज़िला टीपू सुल्तान संघ के बानी अब्दुल हया फेरोज़ ने कहा कि बिला लिहाज मजहब व मिल्लत शहरियान रायचूर जोश व खरोश के साथ टीपू सुल्तान जयंती मनाते हैं। आज हज़रत टीपू सुल्तान की 276वीं यौम पैदाइश के मौके पर हम टीपू सुल्तान सर्कल में सब लोग जमा होके, इसमें हमारे डिप्टी एमएलए मोहम्मद शाह आलम साहब और हमारे टीपू सुल्तान के बानी सईद भाई और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाई फेरोज साहब, सिटी प्रेसिडेंट मासूम साहब और तमाम हमारे एससी भाई जो विश्वनाथ पट्टी है, हमारे पास साहब हैं और हमारे पास साहब कुमार और जो कांग्रेस के और जो दूसरे लीडर्स आए, इसमें हमारे मासूम भाई, हमारे बी रमेश और हमारे असलम पाशा, करीम भाई और जो आए मैं जिनका नाम नहीं ले सका, और हमारे सिटी यूथ प्रेसिडेंट शहबाज साहब, हम तमाम लोग आज इस सर्कल पे जमा होके जो हर साल की तरह इस साल भी उनका जन्मदिन जोश व खरोश से मनाए हैं। हम इंशाअल्लाह हमारे साथ साथ आने वाली नस्ल भी ता क़यामत तक इस जन्मदिन को मनाएगी। आज शहीद हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का 276वां जन्मदिन मना रहे हैं रायचूर जिले के सतह पे। टीपू सुल्तान के ताल्लुक से बात करना सब मेरे दूसरे कम्युनिटी के भाई लोग, मेरे बड़े भाई शालम भाई, सैयद हुसैन साहब सब बता चुके हैं टीपू सुल्तान क्या है। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ ज्यादा। टीपू सुल्तान का एक ही शेर कहते हुए मैं तमाम शहरान रायचूर के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। 100 साल जिंदगी से एक दिन की शेर की जिंदगी बेहतर है। टीपू सुल्तान ने कहा है जब तक हमारा दम है और हमारे आने वाले बच्चों को भी हम बोल के देंगे। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले से खबर है। सिंगामल्ला असेंबली हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ वज़ीर और वाईसीपी के हल्के कोऑर्डिनेटर शिलजानाथ ने आज अनंतपुर शहर में एसई सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के दफ्तर पहुंचकर एक अर्जी पेश की। उन्होंने मुतालबा किया कि सब्बा राइडो सागर आबी ज़ख़ायर को फौरी तौर पर पानी फराहम किया जाए ताकि मुकामी किसानों को फसलों के लिए पानी की दस्तयाबी में सहूलत हो। शिलजानाथ ने कहा कि संगामला हल्के के कई इलाकों में पानी की शदीद किल्लत है और अगर बर वक्त पानी ना छोड़ा गया तो किसानों को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। పుట్లూరు చెరువు అట్లాగే కెనాల్ సుబ్రాయ సాగర్ ఈ సిస్టమ్ మీద దాదాపు నెల కిందే నీళ్లు రావాల్సిన పరిస్థితి మాకు ఇప్పటికి కూడా నీళ్లు రాకపోవడం, పుట్లూరు మండలంలో వర్షాలు కూడా ఈసారి సరిగ్గా లేకపోవడం, ఇప్పటికే తాగునీటి ఎద్దడి మొదలు కావడం అనే సమస్యలు ఉన్నప్పుడు నిన్నంతా రైతాంగం మాట్లాడుకున్నాం. పార్టీలకు సంబంధం లేదు, అది రైతులందరం కూర్చున్నాం మాట్లాడుకున్నాం. ఏంటంటే నీళ్లు రావాలి అర్జెంటుగా, అంటే హక్కుగా ఉన్న నీళ్లు, లోకలైజ్ నీళ్ళు రావాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికి ఏదో అనేక కారణాలు అక్కడ వినిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఆ నేషనల్ హైవేలో రిపేర్ జరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు దాన్ని వెనక్కి ఎడతా ఉన్నారు. వాళ్ళతో అందరితో మాట్లాడుకున్నాం అనే విధంగా కూడా మాట్లాడుతున్నారు రైతాంగం చెప్తా ఉన్నారు. ఏం మాట్లాడుతున్నారు, ఎట్లా మాట్లాడుతున్నారు నాకే తెలియదు. ఈరోజు స్టే కూడా వచ్చిందనేది అని కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇట్లా స్టేలకి లేవు జాంతానే అవన్నీ కుదరవు మన దగ్గర. కాకపోతే ఎస్సీ
हैदराबाद के असेंबली हल्के जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग आखिरी घंटे में जारी है। शाम 5 बजे तक वोट डालने का मौका रहेगा। बीआरएस एमएलए के इंतकाल की वजह से ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। जुबली हिल्स में असल मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान है, जबकि बीजेपी भी मुकाबले में है। इलेक्शन कमीशन ने मुकामी पुलिस के साथ पोलिंग को पुरअमन बनाने के लिए कई सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। मुंसिफ टीवी ने पोलिंग के दिन का अहवाल जानने के लिए जुबली हिल्स हल्के का जायजा लिया। दिल्ली के रेड फोर्ट के करीब धमाके के बाद मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। बेंगलुरु के कैंपे कोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सख्त निगरानी जारी है। यहां वजीर आला सिद्धारामैया ने के अलावा बड़ी शख्सियात की आमद के पेश नज़र इजाफी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस और CIF एहलकार चौकस है। मुसाफिरों और गाड़ियों की सख्त चेकिंग की जा रही है। मुल्क में तमाम बड़े हवाई अड्डों के साथ साथ मुल्क भर में सिक्योरिटी एजेंसियों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। कर्नाटक के धारवाड़ शहर के मारूफ प्रोफेसर डॉक्टर सलीम सोने खान ने मुंसिफ टीवी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिग्री आफ्ताब अफराद की तरक्की के लिए कर्नाटक का वेस्ट ग्रेजुएट्स हल्का अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने बताया कि रियासत भर में ग्रेजुएट्स वोटर्स के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, जो 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक जारी रहेगा। डॉक्टर सलीम सोने खान कर्नाटका वेस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के असेंबली के कैंडिडेट हूँ। ये बार ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। अभी फर्स्ट फेज़ के अंदर 6 नवंबर को कंप्लीट फर्स्ट फेज़ रजिस्ट्रेशन वोट ख़त्म हो गए। आते दिनों के अंदर यानी 25 नवंबर 2025 से और 10 दिसंबर 2025 तक रीओपन हो रहे। तब तक अपने अपने घर के अंदर सब ग्रेजुएट्स बढ़ चढ़ के हिस्सा करके ये अपने वोट रजिस्टर करिए, क्योंकि ये ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी के मैं भी एक कैंडिडेट हूँ, मैं भी एक आकांक्षी हूँ। मैं भी अपना इतना साल मेरा एजुकेशन 25 साल से मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर काम कर रहा हूँ और ख़ुद का मेरा एक स्कूल भी रन कर रहा हूँ। और बहुत सारे मैं कांग्रेस सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होके हर ग्रेजुएट्स के इशू क्या है, किस तरीके से हमारे ग्रेजुएट बच्चों को आते दिनों के अंदर कॉम्पिटिटिव लेवल पे अंदर तैयारी करना, यहाँ हिंदुस्तान में कि नहीं पूरे दुनिया के अंदर हमारे बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस करें। ठीक है, तो आते दिनों के अंदर हमारे बच्चे स्किल इम्पार्टमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम लोग इलेक्टेड मेंबर होके कुछ गए तो हम लोग अपने ग्रेजुएट्स के इश्यूज़ क्या है उसके ऊपर मेहनत करके उसके ऊपर सही मकाम। जिला करपा के प्रोदुटूर से खबर है, यहाँ पुलिस ने राशन के चावल की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने एक गाड़ी को जब्त कर लिया जिसमें चावल ले जाया जा रहा था। 1 टाउन पुलिस ने राशन माफिया के स्मगलरों को भी पकड़ लिया। एक पुलिस ओहदेदार ने बताया कि 3 स्मगलरों को पकड़ लिया गया है और वाक़े को संजीदगी से लेते हुए राशन चावल की गाड़ी को स्मगलरों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी रखने की बात की है। ఈ రోజు 1 టౌన్ PS పరిధిలో ప్రొద్దుటూరు 1 టౌన్ PS పరిధిలో పోలీసు వారికి రామన్న సమాచారం మేరకు వెహికల్ నెంబర్ AP39 UD 6534 అనే వెహికల్లో ప్రజల యొక్క సప్లై చేస్తున్న PDS రైస్ను అక్రమంగా తరలిస్తున్నారని రాబడిన సమాచారం మేరకు ఆ వెహికల్ అదుపులోకి తీసుకున్నాము। ఈ వెహికల్ ఈ సప్లై చేస్తున్న వ్యక్తి పేరు వచ్చేసి సుబ్బయ్య కొడుకు వచ్చేసి సృజన్, అదే మాదిరిగా వాళ్ళ డ్రైవర్ వచ్చేసి జయన్న, వీళ్ళ ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకున్నాము। అదుపులోకి తీసుకొని దాని మేరకు వచ్చేసి ఈరోజు కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగినది। అదే మాదిరిగా ఇంకా దీని వెనుకల ఎవరెవరు ఉన్నారనేది ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో కూడా త్వరితగతిన కంప్లీట్ చేసేసి వీళ్ళ सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं यौम पैदाइश के सिलसिले में मुल्क भर में तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी यूनिटी मार्च के उन्वान से एक तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर विशाखापट्टनम के रुकन पार्लियामेंट श्री भारत ने कहा कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं यौम पैदाइश की मुनासिबत से एक शानदार तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान कई एक प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं जिसकी शिरकत की वो सबसे अपील करते हैं। Everyone, today we have come together
to speak about the Unity March on the occasion of the 150th birth anniversary of our legendary leader Sardar Vallabhbhai Patel ji, who was born October 31st, 1875, and who has been instrumental in the post-independence India. Today, if you see, the country is united today because of his efforts. Almost 500. आंध्र प्रदेश के नंदियाल में आज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। नंदियाल म्यूनसिपल ऑफिस के आते में साबिक फौजी श्रीनिवासलू ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की कोशिश की। इतलात के मुताबिक वो जगह जनानी नगर में अपने मकान के करीब वाक़ एक ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ कई बार शिकायत कर चुका था। साबिक फौजी का इल्ज़ाम है कि मुकामी अफराद ने इस ज़मीन पर नाजायज़ तामीरात शुरू की, जिससे गुजरने के रास्ते में रुकावट पैदा हुई, लेकिन हुक्काम ने उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। मायूसी के आलम में श्रीनिवासलू ने केमिकल पीकर खुदकुशी की कोशिश की। मौके पर मौजूद अफराद ने फौरी तौर पर उसे नंदियाल सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो ज़ेर इलाज है। डॉक्टरों के मुताबिक श्रीनिवासलू की हालत फिलहाल मुस्तहकम है। నా పేరు శ్రీనివాసులు, ఎక్స్ ఆర్మీ. నాకు అన్యాయం జరిగింది కాబట్టి మంద అన్యాయం ఏంటంటే నా ఇంటికి ఎదురుగా అక్బరే వ్యక్తి ఇల్లు కడుతున్నాడు. అది 3 నెలల నుంచి సచివాలయానికి చెప్తే హుసేన్ పట్టించుకుని వాళ్ళతో కుమ్మక్కై పట్టించుకోకపోయాడు. మున్సిపాలిటీ కమిషనర్కి ఇచ్చాము. दक्षिण भारत न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दी इजाज़त। आदाब।